فارمز آف بزنس آرگنائزیشن کو ایک ایک کر کے پڑھ لیا، اس کو ہم نے ختم کر لیا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے ایک ایک انٹرپرینیار کو یا ایک بزنس مین کو، کون سے فیکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے وائل سلیکٹنگ ہز بزنس آرگنائزیشن۔ تو جہاں تک فارمز آف آرگنائزیشن کا تعلق ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہمارا جو آج کا وہ ٹاپک ہے وہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ہے۔ اب چونکہ اس آرگنائزیشن کو، چاہے یہ بڑے ہوں آرگنائزیشن ہمارے یا چھوٹے ہوں، ان کو دو گروپس میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، اونرشپ کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، یا پرافٹ اینڈ گین کے اعتبار سے، یا سروس موٹو کے اعتبار سے۔ تو آج ہمارا یہ ہے جو ہے پہلا پرائیویٹ سیکٹر ہم لے لیں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ بات آپ سے ضرور بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو ہے آج سوسائٹی میں جو ہے اس کو الٹا پلٹ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم پبلک کو پرائیویٹ اور پرائیویٹ کو پبلک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بات آپ سے یہاں بتاؤں گا، ہمارے پاس ایک پبلک سکول ہوتا ہے جہاں پر انگلش میڈیموں کا یہاں پر ایک جو ہے آج ایک چلن ہے ہمارے یہاں، تو لوگ اس کو پبلک سکول بولتے ہیں۔ ایکچولی پبلک سکول جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سکول ہوتا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اٹ از آف دا پبلک فار دا پبلک، اٹ از آف دا پبلک اٹ از آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ سملرلی جو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے اس کو پبلک سکول ہم نہیں کہہ سکتے۔ پبلک سکول اگر ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ دراصل اسی دھوکے میں ہم ہیں کہ ہم اس کو گورنمنٹ کو غیر سمجھ کے اس گورنمنٹ سکول کو توڑ بیٹھتے ہیں، اس کی کھڑکیاں پھاڑ کے گھر لے جاتے ہیں، اور ایک پرائیویٹ سکول کو جو ہے اس کو پبلک سکول سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ الٹا ہے، نہیں، جو گورنمنٹ سیکٹر ہے دیٹ از پبلک سیکٹر، اینڈ پرائیویٹ سیکٹر از ٹوٹلی ان دا پرائیویٹ ہینڈس۔ یہ چند پرائیویٹ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کیپٹل لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس لگاتے ہیں، اور خود اپنا نفع کمانے کے لیے اس بزنس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں یہاں میں یہ بات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ when individual or a group efforts are pooled to set up an undertaking، جب ایک انڈیویجول ایفرٹ کرتا ہے یا کچھ لوگ مل بیٹھ کر کسی سوسائٹی سے چند آدمی جمع ہو کر اپنی ایفرٹس کو لگاتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک جگہ اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں ٹو سیٹ اپ این انڈرٹیکنگ، اور وہ ایک انڈرٹیکنگ یا ایک اسٹیبلشمنٹ یا آرگنائزیشن ڈالتے ہیں، اٹ از کالڈ اے پرائیویٹ انڈیور۔ تو اسی کو پرائیویٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں پرائیویٹ لوگ مل کر اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں، یہ اپنے اس بزنس کے لیے یا خود اس کو مینیج کرتے ہیں، یا اس کے لیے مینجمنٹ کو ہائر کرتے ہیں، یا اس کے لیے پالیسیز خود بناتے ہیں، پروگرامز وغیرہ خود ڈیزائن کرتے ہیں، فیس اپنا خود مقرر کرتے ہیں، واٹ ایور اٹ از، اور جو کماتے ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، بیکاز دیئر موٹیو از پرافٹ ارننگ۔ تو یہ معنی تھا پرائیویٹ سیکٹر کا کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے۔ تو my dear students, this private sector has also some features. Number one is it is owned by an individual or a group of persons. جیسے کہ اوپر میں نے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا، میننگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مالک کوئی ایک آدمی ہو سکتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ اس پیسے کو اپنی بزنس میں لگاتا ہے اور اس آپ کی بزنس سے اپنے لیے کماتا ہے۔ یا اگر ایک آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے، دین اے گروپ آف پرسنز، چند آدمی مل کر جو ہے ایک آرگنائزیشن یا ایک انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس سے اپنا کام کاج چلا کے اس پر محنت کر کے اپنے لیے نفع کماتے ہیں۔ تو
नंबर वन ये है इसका नंबर वन फीचर कि ये एक आदमी का मीरास होती है, मिल्कियत होती है, या किसी ग्रुप की मिल्कियत होती है। ये पब्लिक की मिल्कियत नहीं है, और लोगों को इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। कन्वर्सली मैं बताऊं कि पब्लिक सेक्टर का एक हॉस्पिटल होता है, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। वहाँ पर हर एक जाकर उस पर अपना हक क्लेम कर सकता है, वहाँ पर हर कोई जाकर अपने आप को इलाज करा सकता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हो वहाँ पर वही जा सकता है जिसके पास पैसे हो। वो आदमी जिसके पास वहाँ पैसे नहीं, वो न वहाँ जा सकता है, और नहीं वहाँ उसका इलाज हो सकता है। ये फ़र्क है पब्लिक और प्राइवेट में। तो दूसरा इसका फीचर ये है, द ओनर्स प्रोवाइड कैपिटल फॉर द इंटरप्राइज। जैसे हम देखते हैं जितने भी हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक आई मीन टू गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, उनको तमाम फंड्स गवर्नमेंट से आते हैं, चाहे उनके मुलाजिमों की तनख्वाह हो, चाहे उनकी बिल्डिंग्स हों, वाटर सप्लाई की जो पैसे लगते हैं, या जितना जो कुछ भी उस पर लगता है वो गवर्नमेंट देता है। लेकिन यहाँ पर जो फीचर है, द ओनर्स प्रोवाइड कैपिटल फॉर द इंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर में जो है कैपिटल जो है वो ओनर्स को देना पड़ता है, इसमें कहीं किस्म गवर्नमेंट या और कोई इनको मदद नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्राइवेट गेन्स एंड जनरेट वेल्थ। कन्वर्सली आप देखेंगे जब हमारे पास पब्लिक इंटरप्राइज होता है, फॉर एग्जांपल पब्लिक का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें कोई नफ़ा का मुराद नहीं है, वहाँ चंद रुपए फीस मांगते हैं महीने के लिए, सर्विस चार्जेस, एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल वहाँ पर हज़ारों में फीस मांगा जाता है। बिकॉज प्राइवेट इदारे का मोटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, वेल्थ जनरेशन है, और पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब ये है टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव इनका है टू मेक गेन्स एंड जनरेट वेल्थ। इनका मोटिव जो होता है, इनका मकसद जो होता है वो नफ़ा कमाना है और दौलत को जमा करना होता है, ये इनका फीचर है। चौथा है, मैनेजमेंट इज डन बाय ओनर्स और बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो इसका चौथा फैक्टर ये है कि इसका मैनेजमेंट जो है, इसका निज़ाम जो चलाया जाता है, अगर ओनर्स खुद चाहें तो वो खुद भी चला सकते हैं, वो पैसा भी खुद ग्रैब कर सकते हैं। अगर उनके पास उतनी सलाहियत नहीं है, या उनके पास कोई दूसरी अपनी मजबूरी है, तो वो कहीं से बाज़ार से या कहीं ओपन फील्ड से प्रोफेशनल मैनेजर्स को तनख्वाह के इवज़ लगा सकते हैं, उनसे मैनेजमेंट करा सकते हैं। कन्वर्सली जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइज में जो है, वहाँ पर गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, तो उनको गवर्नमेंट के मुलाजिम चलाते हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, या तो ओनर्स खुद मैनेज करेंगे, या तो कहीं प्राइवेट सेक्टर से वो जाके जो है प्रोफेशनल्स को जो है लाएंगे, और वो इस प्राइवेट सेक्टर का जो है इनके इसका मैनेजमेंट चला सकते हैं। पांचवा इसका फीचर है, द मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू ओनर्स फॉर रिजल्ट्स। तो जो ये मैनेजमेंट लाते हैं, जो इनके इस बिजनेस को चलाते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं मैनेजमेंट के सामने, ओनर्स के सामने। रादर वो जो मालिक होते हैं इस बिजनेस के, उनके सामने उनको जवाब देना होता है। अगर नफ़ा आया तो कितना आया, खुदा न खास्ता अगर नुकसान आया तो क्यों आया, तो ये लोग उनके सामने ज़िम्मेदार हैं, उनके सामने इनको जवाबदेही होती है। तो उनके सामने इनको अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश करना पड़ती है। तो इसका छठा फीचर जो है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ ओनर्स। तो जहाँ तक फाइनेंस का ताल्लुक होता है, जो प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंस विंग होती है, वो ओनर्स अपने हाथ में रखती हैं, क्योंकि इसमें जो है आउटसाइडर्स होते हैं, मैनेजर्स या जो दूसरे होते हैं, उन पर उनको उतना भरोसा नहीं होता है, उनको हायर किया हुआ होता है, लिहाजा ये अपनी ये फाइनेंशियल कमान जो है वो अपने हाथ में रखते हैं, उनके हाथों में जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं देती।
गवर्नमेंट फाइनेंस भी करता है, मैनेज भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। तो आप बालफाज दीगर वो इदारे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा आपको ये लाइन एक। दीज एंटरप्राइजेज आर ओन्ड, आई मीन टू से पब्लिक सेक्टर enterprises are owned and controlled by government or public authorities। यानी इनकी मालिक गवर्नमेंट होती है, इनको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है और इनको कंट्रोल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ इनको कंट्रोल करती है। यानी कि गवर्नमेंट के जो मुलाजिम होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इन्हीं के मातहत होते हैं, वही इनको देखते हैं, वही इनको कंट्रोल करते हैं। तो अनलाइक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की भी कुछ अपनी फीचर्स होती हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं। नंबर एक है इसका फीचर, स्टेट्स और सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जिस तरह हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है, प्राइवेट इदारे में जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इंडिविजुअल्स का या ग्रुप्स का, यहाँ पर या स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल, या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी आई मीन टू से दैट इन ए पब्लिक एंटरप्राइज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कैपिटल होता है, इसीलिए इसको पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसका है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जैसे हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ मैनेजमेंट और कंट्रोल जो प्राइवेट हाथों में था, या तो मैनेजमेंट ओनर्स चलाते या तो वो किसी आउटसाइडर से मैनेजमेंट कराते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट जो है वो खुद इस अपने सेक्टर को या इस अपनी अंडरटेकिंग को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैनेज भी करती है और अपने कंट्रोल में भी रखती है। तीसरा पॉइंट इसका ये है फीचर, ब्यूरोक्रेट्स आर अपॉइंटेड टू रन दीज एंटरप्राइज। ब्यूरोक्रेट्स मीन्स हाई ऑफिशियल्स, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, तहसीलदार्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको काम पे लगाया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है, उन्हीं को इन इदारों का जिम्मेदार बनाया जाता है। वो होल टाइम बेसिस पे इनको देखा करते हैं और उन लोगों को तनख्वाहें जो है वो गवर्नमेंट देती है, वो इन इदारों से नहीं दी जाती बल्कि गवर्नमेंट उनकी तनख्वाह देती है। चौथा जो पॉइंट इसमें है फीचर, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंटरप्राइजेज इज पब्लिक सर्विस। तो इनमें ये बात है कि इन इदारों का काम होता है कि लोगों की खिदमत की जाए। जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाती है, हस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। इसी तरह से जो है इनका एम जो होता है वो ये नहीं है कि हम लोगों से पैसे जमा करेंगे, इनका एम ये होता है, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, उनके दुख दर्द का मदावा कर सकें। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिफ्थ जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा यहाँ पर जो है इसका मैनेजमेंट जो है, चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट इसको चलाते हैं और उन्हीं के हाथों में जो है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है। जैसे कि आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता है, वह ओनर्स के हाथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के हाथों में ही जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। दीज छठा फीचर इसका है, दीज एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। इसीलिए हम देखते हैं अगर कहीं पर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो एकदम गुस्से में आकर लोग जो है वो सड़क पर जो है धरना देते हैं, हाँ, नारेबाजी शुरू करते हैं, क्योंकि वो उन मुलाजमों से हिसाब मांगते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर क्यों ख़राब हो गया। इसी तरह अस्पताल में कोई कमी हो तो लोग जो है एहतिजाज बुलंद करते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट इदारे जो हैं उन पर लोग क्यों एहतिजाज करते हैं, इसलिए ये लोगों के सामने अकाउंटेबल होते हैं, जनरल पब्लिक के सामने। जनरल पब्लिक इनसे हिसाब किताब ले सकती है अगर इनके काम काज में कोई कमी रह सकती है, क्योंकि इनका काम ही जो है वो पब्लिक की खिदमत करना है।
7واں فیچر جو ہے دیز انٹرپرائزز آر اٹونومس اور سیمی اٹونومس باڈیز. اس سے یہ مراد ہے کہ یہ انٹرپرائزز جو ہوتے ہیں یہ اٹونومس ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، یا سیمی اٹونومس یا خود اختیاری ان میں ہوتی ہے، یا سیمی اٹونومس ہوتے ہیں، یا پھر بھی ان کو اگر پوری آزادی نہیں حاصل ہوتی ہے تو بھی ان کو نصف آزادی کام کرنے کی ہوتی ہے. ان کو ہر بات پر گورنمنٹ سے پرمیشن حاصل نہیں کرنا پڑتا ہے، ان کو گورنمنٹ نے ایتھورائز کیا ہوتا ہے، تو یہ اپنے بل پر پبلک کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں آج کے لیسن میں اتنا ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نئے لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.